Hello everyone, welcome to today's discussion on the escalating conflict in West Asia, commonly referred to as the Middle East. This conflict has wide reaching implications not only for the countries involved but for global security, energy markets, and international relations. In this video, we will explore the key players in this multifaceted war and how it may affect India. आज की चर्चा में आपका स्वागत है, जहां हम वेस्ट एशिया में तेजी से बढ़ते संघर्ष के बारे में बात करेंगे। यह संघर्ष न केवल इस क्षेत्र के देशों के लिए बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी बड़े प्रभाव छोड़ता है। विशेष रूप से हम इस बहुआयामी युद्ध में शामिल प्रमुख पक्षों और भारत पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। आइए सबसे पहले इस संघर्ष के ऐतिहासिक संदर्भ पर नजर डालते हैं। The roots of the Israel-Palestinian conflict can be traced back over a century. The Balfour Declaration of 1970 promised a homeland for Jews in Palestine, which was under British control. In 1948, the State of Israel was established, displacing hundreds of thousands of Palestinians. This triggered decades of conflict, with both sides claiming the same land. The Six-Day War in 1967 and the subsequent wars between Israel and Arab states deepened the divide. इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की जड़ें एक सदी से भी अधिक पुरानी है। 1917 की बल्फोर घोषणा ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक मातृभूमि का वादा किया था, जो उस समय ब्रिटिश नियंत्रण में था। 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना हुई, जिससे सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। इससे दशकों तक संघर्ष चलता रहा, जहां दोनों पक्षों एक ही भूमि का दावा करते हैं। 1967 का 6 दिवसीय युद्ध और उसके बाद हुए अन्य युद्धों ने इस विभाजन को और गहरा बना दिया। Now, let's move to the current scenario and why the conflict has flared up again in 2023. अब वर्तमान स्थिति की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 2023-24 में यह संघर्ष फिर से क्यों उभरा है। The current scenario will talk about the three-tier war. In October 2023, Hamas launched a large-scale attack on Israel, resulting in significant casualties and prompting Israel to respond with full military force. However, this conflict has extended beyond just Israel and Hamas. Hezbollah, a powerful Shia militant group in Lebanon, has also joined the fight, further escalating tensions. We can now identify 3 levels of the war. The first level is the Israel versus Hamas, which is primarily taking place in Gaza. The second is Israel versus Hezbollah on the northern border with Lebanon. And the third one is the Israel versus Iran's influence. With Iran backing both Hamas and Hezbollah, this is the broader geopolitical layer of the conflict. अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारी हताहत हुए और इजराइल ने पूरी सैन्य शक्ति के साथ जवाब दिया। हालांकि यह संघर्ष अब केवल इजराइल और हमास तक सीमित नहीं है। लेबनान में शक्तिशाली शिया चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में शामिल हो गया है, जिससे तनाव और बढ़ गया। अब हम इस युद्ध के 3 स्तर पहचान सकते हैं। पहला, इजराइल बनाम हमास, जो कि मुख्य रूप से गाजा में हो रहा है। दूसरा, इजराइल बनाम हिजबुल्लाह, जो लेबनान की उत्तरी सीमा पर है। और तीसरी, इजराइल बनाम ईरान का प्रभाव, जो ईरान, हमास और हिजबुल्लाह दोनों का समर्थन कर रहा है, जिससे यह संघर्ष जटिल हो गया है। नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द की प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉम्प्लेक्स। अब हम इस जटिल युद्ध में शामिल प्रमुख पक्षों के बारे में बात करते हैं। देयर आर द 4 प्राइमरी प्लेयर्स इन दिस कॉन्फ्लिक्ट: इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह एंड ईरान। Israel fighting for its security. Israel has employed a policy of military dominance in the region, ensuring it responds forcefully to any threats. Israel अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है और इसने क्षेत्र में सैन्य प्रभुत्व की नीति अपनाई है, जिससे यह किसी भी खतरे का तीव्रता से जवाब दे सकता है। दूसरा, हमास, a Palestinian militant group ruling Gaza. It aims for the liberation of Palestinian territories and rejects Israel's existence. दूसरा है हमास, एक फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह जो गाजा पर शासन करता है। इसका उद्देश्य फिलिस्तीनी क्षेत्रों की मुक्ति है और ये इजराइल के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। द थर्ड वन इज द हेजबुल्लाह, बेस्ड इन लेबनान एंड बैक्ड बाय ईरान। हेजबुल्लाह सीक्स टू वीक इजराइल थ्रू गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड मिलिट्री असॉल्ट्स। तीसरा है हेजबुल्लाह, लेबनान में स्थित और ईरान समर्थित। हेजबुल्लाह छापामार युद्ध और सैन्य हमलों के माध्यम से इजराइल को कमजोर करना चाहता है। और लास्ट, चौथा, ईरान, द मेजर बैकर ऑफ बोथ हमास एंड हिजबुल्लाह। ईरान सीज दिस कॉन्फ्लिक्ट एज अ वे टू चैलेंज इजरायली एंड यूएस इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया। चौथा, ईरान, हमास और हिजबुल्लाह दोनों का प्रमुख समर्थक। ईरान इस संघर्ष को वेस्ट एशिया में इजरायल और अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देने का एक साधन मानता है।
Now let's discuss the wider implications of the war. अब इस युद्ध के व्यापक प्रभावों पर चर्चा करते हैं. This conflict is not just a local issue but has significant geopolitical implications. यह संघर्ष केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है बल्कि इसके महत्वपूर्ण भू राजनीतिक प्रभाव हैं. The first one is the energy security. West Asia is a major supplier of oil and gas to the world, and any conflict here could disrupt global supply chains, leading to a spike in oil prices. ऊर्जा सुरक्षा. वेस्ट एशिया दुनिया का प्रमुख तेल और गैस आपूर्ति करता है और यहाँ कोई भी संघर्ष वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है, जिससे तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है. The second one is the global powers involvement. United States backs Israel, while Russia and Iran are the key supporters of Hezbollah and Hamas. This makes the conflict part of a larger global power struggle. वैश्विक शक्तियों की भागीदारी. अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है जबकि रूस और ईरान हिजबुल्लाह और हमास के प्रमुख समर्थक हैं. इससे यह संघर्ष वैश्विक शक्ति संघर्ष का हिस्सा बन जाता है. The third one is the humanitarian crisis. The war has already led to the thousands of deaths and displacements of people, causing a serious humanitarian crisis. तीसरा मानवीय संकट है. युद्ध के कारण पहले से ही हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लोगों का विस्थापन हो रहा है, जिससे गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया है. नाउ लेट्स फोकस ऑन हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट अफेक्ट्स इंडिया. अब देखते हैं कि यह संघर्ष भारत को कैसे प्रभावित करता है. द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट हैज सेवरल implications फॉर इंडिया. First, in the form of energy security. India imports a significant portion of its oil from West Asia, particularly from countries like Saudi Arabia and Iran. Any disruption in the region can lead to an increase in fuel prices in India, affecting the economy. वेस्ट एशिया का संघर्ष भारत को कई तरीकों से प्रभावित करता है. पहला, ऊर्जा सुरक्षा के फॉर्म में. भारत अपनी तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से आयात करता है, विशेष रूप से सऊदी अरब और ईरान से. क्षेत्र में कोई भी अस्थिरता भारत में ईंधन की कीमतों में वृद्धि कर सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा. द सेकेंड वन इज द डायस्पोरा कंसर्न्स. मिलियंस ऑफ इंडियंस वर्क्स इन द गल्फ कंट्रीज एंड एनी एस्केलेशन इन कॉन्फ्लिक्ट कुड जियोपार्डाइज देयर सेफ्टी एंड लाइवलीहुड्स. इंडिया माइट फेस चैलेंजेस इन इवैक्यूएटिंग इट्स सिटीजन्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट जोन्स. लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और किसी भी संघर्ष का बढ़ना उनकी सुरक्षा और रोजगार को खतरे में डाल सकता है. भारत को संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों को निकालने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. द थर्ड वन इज द डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट. इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद बोथ इजराइल एंड अरब नेशंस. इट हैज टू केयरफुली बैलेंस दिस रिलेशंस टू मेंटेन पीस इन द रीजन. भारत के इजराइल और अरब देशों दोनों के साथ मजबूत कूटनीतिक संबंध है. इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए इन संबंधों को सावधानीपूर्वक संतुलित करना होगा. द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द टेररिज्म. An unstable West Asia may lead to the rise of extremist groups which can pose security threats to India. चौथा और आखिरी, आतंकवाद. अस्थिर वेस्ट एशिया चरमपंथी समूहों के उभरने का कारण बन सकता है, जो भारत के लिए सुरक्षा खतरे पैदा कर सकता है. Lastly, we will discuss some potential solutions and strategies for India. अंत में हम कुछ संभावित समाधानों और भारत की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे. India can adopt the following strategies to safeguard its interests. The first one is the diversifying energy resources. India should invest more in renewable energy and diversify its oil imports to reduce its dependence on West Asia. भारत अपनी रुचियों की रक्षा के लिए निम्नलिखित रणनीतियां अपना सकता है. पहला, ऊर्जा स्रोतों का विविधीकरण. भारत को नवीकरणीय ऊर्जा में अधिक निवेश करना चाहिए और अपने तेल आयात को विविध बनाना चाहिए ताकि वेस्ट एशिया पर निर्भरता कम हो. Second one is the strengthening diplomatic channels. India should continue to strengthen its diplomatic ties with both Israel and Arab nations, playing a neutral role and encouraging peace talks. भारत को इजराइल और अरब देशों के दोनों के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना जारी रखना चाहिए, तटस्थ भूमिका निभाते हुए शांति वार्ताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए. Third one is the securing diaspora interests. The government should have contingency plans to ensure the safety of Indian citizens living in the Gulf in case of an escalation in conflict. सरकार को खाड़ी में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनानी चाहिए, विशेष रूप से संघर्ष के बढ़ने की स्थिति में. द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द इंटेलिजेंस कोऑपरेशन. इंडिया शुड एनहांस इंटेलिजेंस कोऑपरेशन विद कंट्रीज इन द रीजन टू काउंटर टेररिज्म थ्रेट्स. भारत को क्षेत्र के देशों के साथ खुफिया सहयोग बढ़ाना चाहिए ताकि आतंकवाद के खतरों का मुकाबला किया जा सके. एट लास्ट, वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस by saying the conflict in West Asia is complex and multifaceted with far-reaching global implications. For India, it poses challenges in terms of energy security, diplomatic relations, and the safety of its diaspora.
By adopting strategic solutions, India can mitigate this risk and continue to play a crucial role in the region's peace process. अंत में, वेस्ट एशिया में संघर्ष जटिल और बहुआयामी है, जिसके वैश्विक प्रभाव है। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक संबंधों और अपने प्रवासियों की सुरक्षा के संदर्भ में चुनौतियां पेश करता है। रणनीतिक समाधानों को अपनाकर भारत इन खतरों को कम कर सकता है और क्षेत्र की शांति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दैट्स इट फॉर द टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। If you found this video informative, please like, share and subscribe to Legal Card for more in-depth legal analysis. Till then, thank you so much. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और लीगल कार्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए आगे से वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए शुक्रिया।